Hello learners, this is Neha. Welcome back to our YouTube channel India's Learner. Dear friends, today in this video we shall discuss chapter 7 from class 8 Social and Political Life, that is understanding marginalization. Under this topic we will understand the term marginalization, what are the marginalized groups in India. Also we will discuss about the reason behind the situation and the provisions we have to prevent it. So, now we are going to do the summarized study of the complete chapter, and the topic is going to be very interesting. So, please watch the video completely for better understanding. Also, subscribe and share my channel. Thank you. Now, let's start the video and know what are the major topics to be discussed in the video. So, first we will discuss and know about the term marginalization. Next, we will talk about what are the socially marginalized groups of India, like about Adivasis. We will come to know Adivasis and stereotyping. Our next topic will be Adivasis and marginalization. Next, we will discuss about the Muslim, which are considered as minorities. Also, we will talk about Muslims and marginalization. And the last, we will come to know about what are the government provisions for marginalized groups. So now let us cover the topic one by one. So now let us first understand that what is marginalization. Marginalization जिसे हम हास्यकरण भी कह सकते हैं. हास्यकरण क्या है चलिए समझते हैं. So first have a look for the definition of it. That is, marginalization is when groups of people or communities are being excluded from the majority because of their languages, custom or religion. It means marginalization is the process of pushing a particular group of people to the edge of society by not allowing them an active voice, identity or place in it. मार्जिनलाइजेशन यानी हास्यकरण समाज की वह स्थिति है जहां पर समाज के एक तबके को जिसकी भाषा, रीति रिवाज, धर्म या जाति समाज के मेजॉरिटी ग्रुप से काफ़ी ज़्यादा अलग है, उन्हें समाज से एक्सक्लूड कर दिया जाता है और they are being deprived of certain privileges or treated as different from others. तो इस तरह से मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स जो हैं वह अपने आप को काफ़ी ज़्यादा भिन्न पाते हैं समाज के मेजॉरिटी ग्रुप से और कहीं ना कहीं वे अपने अधिकारों से भी वंचित हो जाते हैं. ऐसा क्यों होता है चलिए जानते हैं व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड दिस सिचुएशन. The reason may be that these groups of people, the marginalized groups of people, speak different languages or they belong to different caste or they follow different custom or religion or they may be or considered to be the poor or the low status in the society. So these are some reasons for that the marginalized groups of people or particular group of people are considered as unimportant and isolated from the others. So this is all about the marginalization. Now let us talk about, see, what are the socially marginalized groups of India. In our country India, mainly the two major groups like Adivasis or the tribal society. These people are socially marginalized, they are considered, and also the Muslims, which are as minorities also, they are considered in our country India. These two Adivasis and Muslims are socially marginalized groups of India. In this video, we will talk about these two. Now let us first know about Adivasis. Who are Adivasis? What do we know about Adivasis? The first, the term Adivasis means the original inhabitants. आदिवासीज हमारी सोसाइटी के भारतीय समाज में क्या माने जाते हैं? समाज के मूल निवासी हैं, सभ्यता के मानवीय सभ्यता के मूल निवासी हैं. आदिवासीज हैव ऑलवेज बीन इन क्लोज कनेक्शन विद फॉरेस्ट. यह भी हम समझ सकते हैं, जानते ही हैं कि आदिवासीज का हमेशा से ही फॉरेस्ट लैंड के साथ एक क्लोज कनेक्शन रहा है. दे आर ऑल्सो नोन एज शेड्यूल्ड ट्राइब्स एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. हमारे भारतीय संविधान में इन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब्स की संज्ञा दी गई है. अबाउट 8% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज आदिवासीज
and there are 500 different Adivasis groups in India and they are not homogeneous. हमारे देश में कि लगभग 8% आबादी आदिवासी की है और यह आदिवासी ग्रुप जो है हमारे देश के अंदर लगभग 500 से भी ज़्यादा है और यह आपस में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। यह एक समान नहीं है, एक दूसरे की कस्टम्स और जो वेशभूषा है, क्लोथिंग है, ये सभी एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग है। Adivasis dominated states are Chhattisgarh, Jharkhand, MP, and Odisha, Gujarat, Maharashtra, northeastern states, and many more. These all about the states of India in which Adivasis are majorly reside or live. Adivasis worship their ancestors, village and natural spirits. Yes, आदिवासी समुदाय आस्था रखते हैं अपने पूर्वजों में और गांव और यहाँ तक कि प्रकृति की जो प्रकृति से जुड़े रहते हैं और यह फॉलो भी करते हैं इन्हें। Adivasis have their own languages and have always been influenced by different religion like Vaishnav and Christianity. Adivasis की एक अपनी ही भाषा होती है, बोली होती है और इनमें से जो संथाली है, कई भाषाएं हैं आदिवासियों की, इनमें से संथाली सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली आदिवासी भाषा है। आदिवासी समय समय पर कई सारे धर्मों के प्रभाव में रहे हैं जैसे वैष्णव, क्रिश्चियनिटी आदि। Adivasis are usually portrayed in colorful costumes and headgear. The dances are also unique. आदिवासीज को अक्सर हमने पाया है या देखा है चित्रों में कलरफुल कॉस्ट्यूम्स में या फिर हेड गियर और उनके डांसेस को भी काफ़ी यूनिक तरीके से दर्शाया गया है। तो यह इतना कुछ हम आदिवासीज के बारे में लगभग जानते ही हैं। चलिए हम जानते हैं अब आदिवासीज एंड स्टीरियोटाइपिंग। आदिवासीज के साथ किस तरह के स्टीरियोटाइपिंग जो है फैक्ट वो जुड़े हुए हैं। तो पहला है आदिवासी आर यूजुअली पोर्ट्रेड इन कलरफुल कॉस्ट्यूम। जैसा कि हम जानते हैं अक्सर आदिवासीज को, ट्राइबल सोसाइटीज़ को हमने बुक्स में और पिक्चर्स में देखा है, मूवीज़ में देखा है कि आदिवासीज को अक्सर कलरफुल कॉस्ट्यूम्स में दिखाया जाता है। उनके सर पर एक डिफरेंट टाइप का हेड गियर होता है एंड थ्रू देयर डांसिंग, उनका डांसिंग भी काफ़ी यूनिक होता है। इस तरह से हमने उन्हें दिखाया गया है ज़्यादातर। हैंस इट इज़ द जनरल बिलीफ ऑफ द पीपल that Adivasis are exotic, primitive and backward, but it is not so reality. लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब हम ऐसा मान लेते हैं कि आदिवासीज क्या है कि वो बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव है, यानी कि पिछड़े हैं और वो अपने जो है रीति रिवाजों से काफ़ी ज़्यादा जुड़े हैं और वह बिलीव नहीं करते, मतलब कि एडवांसमेंट में या मॉडिफिकेशन में बिलीव नहीं करते और वह बहुत ज़्यादा एक्सॉटिक है, मौज मस्ती में रहने वाले हैं और प्रैक्टिकल नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। Adivasis are often blamed for their lack of advancement as they are believed to be resistant to change or new ideas. तो यहाँ पर यह भी देखा गया है कि आदिवासीज को हमेशा यह मतलब यह ब्लेम किया जाता है कि वह बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है, मतलब प्रैक्टिकल नहीं है और चेंजेस को वो अडेप्ट नहीं करते हैं और अकॉर्डिंग टू चेंज भी नहीं होते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव भी उनको माना गया है। यह जो स्टीरियोटाइपिंग फैक्ट्स हैं वो आदिवासीज के साथ जुड़े हुए हैं। आदिवासीज एंड मार्जिनलाइजेशन, क्यों भारत के अंदर आदिवासीज को मार्जिनलाइजेशन या मार्जिनलाइज ग्रुप्स में कंसिडर किया गया है, चलिए देखते हैं। सो first reason is that Adivasis have been increasingly forced through economic changes, forest policies and political force applied by the state or private industry to migrate to live as workers in plantation, as construction sites, in industries and as domestic workers. आदिवासीज को हमने ये भी देखा है कि समय समय पर बहुत ज़्यादा उन पर दबाव बनाया गया है बाय द स्टेट या प्राइवेट इंडस्ट्री के थ्रू। यह क्यों? क्योंकि कई सारे आर्थिक बदलाव हुए, इकोनॉमिक चेंजेस हुए हैं, न्यू फॉरेस्ट पॉलिसीज़ हुई हैं समय समय पर और अप्लाई हुई हैं, पॉलिटिकल फोर्स भी इसका कारण हो सकता है, जिसके कारण आदिवासीज को माइग्रेट होना पड़ा, अपना स्थान फॉरेस्ट लैंड छोड़ने पड़े हैं और उन लोगों को शहर की ओर जाकर बसना पड़ा है। टू लिव एज वर्कर इन प्लांटेशन, कई सारे आदिवासी जो कि प्लांटेशन के कामों में एज अ वर्कर मजदूरों की तरह काम करने लगे, कई सारे कंस्ट्रक्शन साइट्स पर मजदूरों की तरह काम करने लगे एज अ लेबर, इंडस्ट्रीज में, और कई सारे डोमेस्टिक वर्कर्स भी बन गए। समय पर आदिवासी के साथ इस तरह का जो है वह ट्रीटमेंट होता रहा है।
इसके अलावा बहुत सारे आदिवासी ग्रुप्स ऐसे भी हैं. मैनी आदिवासी ग्रुप्स वर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट लैंड एंड द मिनरल रिच एरियाज ड्यू टू लार्ज इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट टू गेट द नेचुरल रिसोर्सेज. समय समय पर भारत के या कई सारे ऐसे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट आते रहे हैं, जैसे डैम प्रोजेक्ट भी होते हैं, जिनके कारण यहाँ पर आदिवासी को अपने जो मूल निवास है, फॉरेस्ट लैंड है, मिनरल रिच एरियाज हैं, यहाँ से उनको डिस्प्लेस किया गया है. और इस वजह से ये आदिवासी जो हैं डिफॉरेस्टेशन के कारण भी इस तरह से आदिवासी के साथ उनको उनके जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं वो अराइज हुए थे मार्जिनलाइजेशन की वजह से. इसका क्या रिजल्ट रहा, आदिवासी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, वो देखेंगे. दे लॉस ऑफ मेन रिसोर्स ऑफ लिवलीहुड. इसके कारण आदिवासी को अपना जो मुख्य आजीविका का साधन था, जो कि फॉरेस्ट है, वह गंवाने पड़े, छोड़ने पड़े. द लॉस ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, उनकी जो आर्थिक का स्रोत था, अर्थ का, वह इनकम का स्रोत था, आय का स्रोत, वह भी लगभग खत्म हो गया. एंड लॉस ऑफ ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स, और अपने डिस्प्लेसमेंट की वजह से, अपने नेचुरल लैंड और फॉरेस्ट लैंड की से दूर होने की वजह से और अपने समुदाय से दूर होने की वजह से, बिखर जाने की वजह से अपने ट्रेडिशन और कस्टम्स के साथ को भी इन्हें खोना पड़ा. तो इस तरह आदिवासी के साथ बहुत ज़्यादा दे डिप्राइव्ड हो गए ऑफ देयर प्रिविलेजेस, देयर ओरिजिनल ट्रेडिशन एंड कस्टम्स एंड देयर लिवलीहुड आल्सो. सो नाउ let us talk about Muslims as minorities. Yes, the second major group of marginalized in our country, India, which are also considered as minorities, that are Muslims. Let's talk about them. About Muslims. The first, the term minority is most commonly used to refer to communities that are numerically small in relation to the rest of the population. पहले हम बात कर लेते हैं कि minority क्या है. Let us understand the term minority. तो minority का मतलब है एक ऐसा समुदाय जो कि न्यूमेरिकली स्मॉल है इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन. मतलब आबादी टोटल जो पॉपुलेशन है उसमें कुछ ऐसा समुदाय या ग्रुप ऑफ पीपल जो संख्या में कम है, बहुत ज़्यादा कम है, तो उन्हें हम माइनॉरिटी कह सकते हैं, अल्पसंख्यक कह सकते हैं. जैसे कि मुस्लिम आर 14.2% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन. एज पर द सोर्स देखा गया है कि मुस्लिम भारत की आबादी के लगभग 14.2% ही हैं. दे आर कंसिडर्ड टू बी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप कम्युनिटी ऑफ इंडिया एज दे हैव over the years been deprived of the benefits of social economic development. उन्हें मार्जिनलाइज कम्युनिटी में रखा गया है क्योंकि यह देखा गया है कि लगभग कई सालों से वह सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बेनिफिट से, लाभों से वंचित रहे हैं. और इसके पीछे क्या रीजन रहा है? बिकॉज दे आर लेस इन नंबर, वह न्यूमेरिकली स्मॉल हैं, संख्या में कम है आबादी में. दे आर फॉलोइंग डिफरेंट कस्टम और रिलीजन. उनके जो रीति रिवाज हैं या धर्म है वह काफ़ी ज़्यादा अलग है मेजॉरिटी से. दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड देयर क्लोथिंग आर ऑल्सो मच डिफरेंट. तो इसका इम्पैक्ट भी उनके इस चीज़ पर पड़ा है. जो उनके लैंग्वेजेस और क्लोथिंग काफ़ी डिफरेंट है, इसके कारण भी दे आर वेरी मच ट्रीटेड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. लेट अस से मुस्लिम एंड मार्जिनलाइजेशन. क्या मार्जिनलाइजेशन किसका मुस्लिम्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है और किस तरह से देखा गया है? एज पर द रिपोर्ट्स के अनुसार ये देखा गया है कि जो मुस्लिम्स हैं दे आर डिप्राइव्ड ऑफ बेसिक अमेनिटीज लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एट्सेट्रा. ऐसा हम रिपोर्ट्स में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आप रिपोर्ट में यहाँ देख सकते हैं कि जो मुस्लिम्स हैं, यहाँ पर ये मुस्लिम्स हैं, यहाँ पर देखेंगे पक्का हाउस 63.8 और इलेक्ट्रिसिटी 67.5 और टैप वाटर 35.8, जो कि बाकी सभी कम्युनिटीज से, रिलीजियस कम्युनिटीज से सबसे ज़्यादा कम है. और ये एक और रिपोर्ट देखेंगे लिटरेसी रेट में. सो दे ऑल्सो हैव लिटिल एक्सेस ऑफ एजुकेशन. यह भी रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि मुस्लिम का 57% आर लिटरेट, जो कि बाकी सभी जो रिलीजियस कम्युनिटी हैं उनसे सबसे ज़्यादा कम है. इसके अलावा हम देखेंगे इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भी दे टू हैव ऑलवेज लैग बिहाइंड टू द अदर कम्युनिटीज़. बाकी कम्युनिटीज से पीछे हैं पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भी. जैसे कि हम देख सकते हैं कि चाहे वो पॉपुलेशन, जैसे 13.5 पॉपुलेशन यहाँ पर दिखाई गई है, तो इतनी टोटल जो मुस्लिम की आबादी है इनमें से सिर्फ 3%
जो हैं IAS हैं, 4% IPS हैं या IPS हैं, IFS हैं, या अलग अलग कह लीजिए 3% और PSU में हैं, स्टेट PSU या बैंक्स में हैं 22%। ये बहुत ही ज़्यादा कम रेशियो है, कम परसेंटेज है इनका। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दे आर वेरी मच डिप्राइव्ड ऑफ द बेनिफिट ऑफ दीज ऑल बेसिक अमेनिटीज और द सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट। और the for that the government also just organized a committee, राजेंद्र सच्चर कमेटी को उन्होंने ऑर्गेनाइज किया इसके लिए और उनसे सजेशन ली। So this committees also suggest that on a range of social, economic and educational indicators that the situation of Muslim community is almost same as scheduled caste and scheduled tribes। राजेंद्र सच्चर कमेटी जिसे गठित किया गया था सरकार के द्वारा इसी विषय पर जांच करने के लिए, उन्होंने ये सुझाव दिया कि इंडिकेटर्स जैसे कि सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल इंडिकेटर्स हैं, जैसा कि रिपोर्ट्स में भी दिखाया गया है, उनसे यह तय किया गया, यह पता लगा कि जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं इंडिया के अंदर, वह काफ़ी हद तक उनकी स्थिति लगभग शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी SC और ST के बराबर ही है। नेक्स्ट हम देखेंगे गवर्नमेंट प्रोविजंस फॉर द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, कि सरकार ने इसके लिए मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के लिए अपलिफ्टमेंट के लिए क्या प्रोविज़न तय किए हैं, क्या प्रोविज़न बनाए हैं। तो पहला है द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 टू स्टॉप देयर ह्यूमिलेशन। यहाँ पर गवर्नमेंट ने यह जो एक्ट बनाया है 1989 में SC STs के लिए, उनका यह भी एक बहुत अच्छा प्रोविज़न रहा है, गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव रहा है उनके अपलिफ्टमेंट के लिए। नेक्स्ट, रिजर्वेशन इज प्रोवाइडेड टू SCs and STs and OBCs at the rate of 15%, 7.5%, 27% respectively। रिजर्वेशन का जो एक मेथड है वह भी अपनाया गया है, प्रोविज़न है गवर्नमेंट के थ्रू कि SCs को 15% रिजर्वेशन दिया गया है, STs को 7.5% और OBCs को 27% रिजर्वेशन दिया गया है गवर्नमेंट जॉब्स में। और यहाँ पर हम देखेंगे इन द लोकसभा 84 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर SCs एंड 47 सीट्स आर रिजर्व फॉर STs। लोकसभा यानी पार्लियामेंट के पार्लियामेंट्री हाउस जो है, हाउस ऑफ द पीपल, यहाँ पर भी रिजर्वेशन दिया गया है। SCs को 84 सीट्स दी गई हैं जबकि STs को 47 सीट्स दी गई हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ प्रोविजंस बनाए गए हैं for the upliftment of marginalized groups, like fundamental rights of freedom of religion and rights to educational and cultural freedom. These are also given in the Constitution of India. Also, we have Article 15 in our Constitution that state that any of the person or the state shall not discriminate against any citizen on the grounds only of religion, race, caste, sex or place of birth. Article 17 also we have that abolished untouchability. So these are some of the provisions of government that are very much worked for the welfare of these marginalized groups, and reservation are also done to break the stronghold of the upper caste, people, and to bring marginalized people in the mainstream of the society. So now, thanks for watching the complete video. Please do like and comment and subscribe my channel for more such videos. Thank you.